باقاعدہ ان کے ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ کیا کیونکہ ہمیں وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے تھی. ہم انڈیا کے خلاف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے افغانستان کے اندر ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانا چاہتے تھے. تو کیا اس میں آئی ایس آئی اور میں یہاں پر ایک بریک لوں گا, بریک سے واپس آؤں گا تو میں یہاں پر ساتھ سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کروں گا, اور وہ کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا ہماری آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی جو وہ اس میں انوالو ہے کہ نہیں ہے, جو کہ انہوں نے بقایا طور پہ کہہ دیا کہ ہے, لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. RQ Fashions, an online boutique for custom-made ladies' dresses. Find RQ Fashions on Facebook or contact us on 92321 201 4546. RQ Fashions, an online boutique for custom-made ladies' dresses. Find RQ Fashions on Facebook or contact us on 92321 201 4546. RQ Fashions, an online boutique for custom-made ladies' dresses. Find RQ Fashions on Facebook or contact us on 92321 201 4546. RQ Fashions, an online boutique for custom-made ladies' dresses. Find RQ Fashions on Facebook or contact us on 92321 201 4546. RQ Fashions, an online boutique for custom-made ladies' dresses. Find RQ Fashions on Facebook or contact us on. ویلکم بیک ناظرین. وقفے میں جانے سے پہلے ہم لوگ بات کرتے تھے, میں نے ساتھ سے سوال پوچھا تھا کہ آئی ایس آئی اس میں انوالو ہے کہ نہیں, اور آئی ایس آئی کے بارے میں اور پاکستان آرمی کا اس میں کیا کردار ہے. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا بریک سے پہلے کہ آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی نے طالبان کو افغانستان میں سپورٹ کیا تھا پری 9/11, انہیں پراپ اپ کیا تھا, انہیں ٹریننگ دی تھی, انہیں مٹیریل سپلائی کیے تھے, کیونکہ ہمیں وہ انڈیا کے خلاف ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے تھی. ہم چاہتے تھے کہ اگر جو انڈیا ہمیں اٹیک کرے ان کنونشنل وار, ہم افغانستان کی ٹیریٹوری میں ایک اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ بنا سکیں, اور ہماری جو کشمیر میں انسرجنسی ہم سپورٹ کر رہے تھے اس وقت, اس کے لیے ہمیں پرسنل جو ہم نے کیا تھا ہمارا نہ صرف امریکہ کا ساتھ دینا اس وقت مقصد تھا, بلکہ انڈیا کو نقصان پہنچانا شاید زیادہ مقصد تھا ہمارا. ایبسولوٹلی. دیکھیں جی, جب سوویت یونین افغانستان سے چلی گئی, امریکہ نے جو میرے حساب سے بہت بڑی غلطی, لیکن امریکہ نے پھر وہاں اس ریجن سے منہ موڑ لیا تھا. ان کا وہاں مقصد ختم ہو چکا تھا, ان کا مقصد صرف سوویت یونین کو وہاں مات دینا تھا, اور انہوں نے وہ دے دی تھی. لیکن اس کے بعد پاکستان نے اس رول کو اٹھایا اور پھر ہم نے اسے چلایا. تو تحریک طالبان جو 80 سے لے کے اب 2001 سپٹمبر 11 2001 تک
जहाँ तक पहुंची थी उसको पहुंचाने में पाकिस्तान का हाथ था. तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जहां अपना काम खत्म किया था हम उसको कंटिन्यू करते रहे, लेकिन इसका मतलब तो यही कहना हुआ कि हम अमेरिकन किरदार को बाद में अदा करते रहे. Right, लेकिन वो हमारे अपने इंटरेस्ट के लिए था, अमेरिकन इंटरेस्ट तो नहीं था ना वहाँ पे. फिर अब वंस द सोवियट्स हैव विथड्रॉन, यही लोग तो कल तक मुजाहिदीन थे अमेरिका के लिए भी, और यही लोग कल तक फ्रीडम फाइटर्स थे अमेरिका के लिए. आज जो यही टेररिस्ट हैं इन लोगों के लिए. ज़ाहिर है जब अमेरिका को उनकी ज़रूरत नहीं रही तो वो फ्रीडम फाइटर नहीं रहे, वो टेररिस्ट बन तो गए. बात फिर वही हम पीछे जाते हैं कि टेररिज्म की जो डेफिनेशन ये है कि अगर एक आदमी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है तो जो जंग लड़ रहा है वो तो अपने आप को मुजाहिद कह रहा है, लेकिन जिसके खिलाफ लड़ी जा रही है वो उसको टेररिस्ट या दहशतगर्द का नाम दे रहा है. तो देखना ये है कि हम इस डेफिनेशन या इस तारीख को किस रोशनी में देख रहे हैं. अच्छा, यहाँ पर अभी आप लोगों ने ये बात की यार, ये यहाँ पर ये कुछ हो रहा है. अभी हमने जो मेरा अभी मेन मैं जिस फोकस पर आना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो अहमदियों के साथ अभी जो अहमदी मस्जिद में जो हुआ है उनके साथ हुआ, ना सिर्फ ये बल्कि लाहौर में अभी 2-4 ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं. एकदम ये चीज़ ठंडी होती है, उसके बाद एकदम फिर कुछ ना कुछ ऐसा एक एक्टिविटी हो जाती है. तो ये लगता है कुछ स्क्रिप्टेड है, कुछ चीज़ें ये जो है एक दूसरे के साथ ये चीज़ें मिली हुई हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड है कि मतलब एक चीज़ होगी उसके बाद 4-5 महीने के लिए बात ठीक हो जाएगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा. तो आखिर इसके पीछे इनको क्या सपोर्ट है और इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? इस वक्त जो है मेरे हिसाब से पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में, खास तौर पे पाकिस्तान की आर्मी में 3 खत्ते बन चुके हैं. देयर इज ए प्रो वेस्ट फैक्शन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, देयर इज अ प्रो चाइना फैक्शन, और जो तीसरा है वो एक शैडो फैक्शन है जो अपने आप को जाहिर आमतौर से नहीं करता इन दोनों कंपैरिजन में, इन दोनों दूसरे फैक्शंस के, लेकिन वो है प्रो तालिबान फैक्शन. पाकिस्तान आर्मी के अंदर, पाकिस्तान आर्मी के अंदर, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, पूरे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, पाकिस्तान की एजेंसी और आर्मी के अंदर. लेकिन इसको फंड कौन कर रहा है? उसको यही फंड कर रहे हैं यही ये लोग क्या थ्रू अपने ही सऊदी मुल्क में- अरेबिया. अपने ही मुल्क में धमाके करवा कर क्या फायदा होगा? इनका फायदा यही हुआ कि इन लोगों, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कि एज लॉन्ग एज इनका जो गोल है वो मीट होता है, वो जिस तरह से भी पहुंचे उनके लिए वो ठीक है. ये हमारे यहाँ जो फिरकाई झगड़े फसाद हो रहे हैं ये भी वो फंड करते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए ये दूसरे फिरके एस्टैब्लिशमेंट फंड करती है उसको. इसको पूरी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, एस्टैब्लिशमेंट में चंद लोग जरूर हैं जो फंड करते हैं. एस्टैब्लिशमेंट जी फंड करती है जो इनको अपने ही मुल्क में धमाके कराने के लिए. नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती. मुझे तो महसूस ये होता है कि ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और इस्टेब्लिशमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों का ये एक हिस्सा है. देखें जी, और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि ये जो है ये एक कित्ता है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर. ये पूरा एस्टैब्लिशमेंट मैं हरगिज ये नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे अभी ये रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी निकली थी हामिद मीर साहब के साथ, और उन्होंने जो फ़ोन पे बात करते हुए उनकी आवाज़ को टेप किया गया एलिजिडली कि उनकी आवाज़ है, वो एक ISI एजेंट को कह रहे हैं कि वो इसराइल का एजेंट है, मैं ये सब हामिद मीर साहब की बात में नहीं पढ़ना चाहता, वो एक डिटेल श्योर डिस्कशन हो जाएगी. एब्सोल्युटली. लेकिन लेकिन वो एक हमें ये जरूर दिखाता है, एक हमें उसकी इनसाइट जरूर देता है कि ये जो है ये सिंपली ये नहीं है कि कुछ पठान तालिबान और पंजाबी तालिबान कहीं जंगल में बैठ के पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है. ये एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है जो चलाई जा रही है. इसकी फंडिंग भी बहुत ऑर्गेनाइज है. इन लोगों के पास कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स मिल रहे हैं. ये लोग कहाँ से ये लोग जाके लाहौर में घर रेंट करते हैं और गाड़ियां रेंट करते हैं जिनमें फिर ये बम लगाते हैं. सिक्योरिटी एजेंसीज. और दूसरी बात ये कि ये जो इन्होंने बात की जी एस्टैब्लिशमेंट इसमें बहुत ज़्यादा शामिल है, और एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो टेररिज्म को फरोग देता है बेसिकली. अगर मैं आसान लफ्जों में अगर आपकी बात अगर मैं सही तरह से फॉलो कर पाया हूँ तो एक हमारी अपनी एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, एक ऐसा एक ग्रुप है जो एस्टैब्लिशमेंट को जो टेररिज्म को फरोग देता है. लेकिन ये जो वॉर ऑन टेरर जिसको हम पिछले 9-10 साल से भुगत रहे हैं, ड्रोन अटैक्स होते हैं, न जाने क्या कुछ हो रहा है, वो मतलब मारे जाते हैं, जिस तरह आपने कोलैटरल डैमेज की बात की, क्या उससे जो है ये टेररिज्म में इजाफा होता है कि नहीं होता? वो कितनी बड़ी वजह है टेररिज्म में इजाफे की? जी बिल्कुल, ड्रोन अटैक्स तो टेररिज्म को बिल्कुल फ़रोग दे रही हैं, क्योंकि इन ड्रोन अटैक से हेट्रेड बढ़ रही है और वायलेंस को मज़ीद फ़रोग मिल रहा है. बिल्कुल ड्रोन अटैक एक बहुत बड़ी वजह है वायलेंस को फ़रोग देने की. जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि
होता यह है कि जब आप अपना सब कुछ लुटा चुके होते हैं या सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है तो आपके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता और आप सिर्फ अपने जज्बात के तहत कदम उठा रहे होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में खुलेआम या पसे मंज़र में रह के काम कर रही हैं लोगों को रिक्रूट करने का दहशत गर्दी की सरगर्मियों के लिए, वो ऐसे ही जज्बात भरे नौजवान जहनों को एक्सप्लॉइट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और बड़ा आसान हो जाता है फिर ऐसे मजबूर लोगों के लिए उन ऑर्गेनाइजेशन का शिकार बन जाना। तो इनडायरेक्टली ये है कि ये चीज़ें दहशत गर्दी को मज़ीद फ़रोग़ दे रही हैं। साथ आपने ये बात यहाँ पर की थी कि जी हम लोगों ने इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्लान बनाया, हम लोगों ने प्लान बना के इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ख्याल है बलूचिस्तान